Assalamu alaikum and good afternoon, everyone. I hope I'm audible. Please let me know because today's session is very, very important because we are going to learn about the memory placement strategies. Three different strategies are there. So we'll be learning those strategies and with the help of example, we'll be solving. Sometimes there is a question in examination for 10 marks in order to solve with the help of the data will be given to us and we'll have to solve we have to place the processes in the given location in the given memory, so with the help of different strategies we can do so. Okay, so please let me know whether I'm audible, clear or not. किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है. My voice is clear or not? Please let me know. Okay, so considering this that everything is okay, audio video सब कुछ okay है, we will start the session. Okay, so once again I welcome you all to the next topic of memory management, and the topic is memory placement strategy. Okay, before starting with the next topic, that is memory placement strategies, let me clear you and let me revise you in 2 or 3 minutes what we have done in the last session. Okay, because until and unless we will be knowing and will be having good idea about the previous strategies what we have seen, we cannot understand the reason why this topic is exist. Okay, मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया हूँ कि whenever you are learning a new topic, you always question yourself that why you are learning this topic. Okay, and why there's a requirement of topic this topic. Okay, so मतलब आप नया टॉपिक पढ़ रहे हो, okay, that is given in the syllabus book, but still you must identify, you must realize yourself कि why this topic is exist. Okay, so memory placement strategies. Okay, चलो मैं आपको लेके चलता हूँ थोड़ा सा flashback में. Okay, when we have done this one, see we have done this particular memory management technique का चार्ट मैंने आप लोग को बना के बताया था. ठीक है, इन मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि आप में से कुछ लोगों को रिवीजन थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, बट स्टिल रिवीजन जो सेहत के लिए काफी अच्छा होता है, तो इसको थोड़ा कंसिडर किया था. ठीक है, so we can consider two mode, that is uni-programming mode and the multi-programming mode. Okay, where multi-programming mode, where we are having number of processes coming for execution and we have to fulfill their requirements. Okay, so in multi-programming, we have to talk about the multi-programming environment only. And in the multi-programming environment, we are having two allocation strategy. One is the contiguous, second is non-contiguous. In the contiguous memory allocation, the memory is allocated one after another. That is very clear. In non-contiguous, the memory is not allocated one after another. If the memory is allocated at location one, हो सकता है the second memory will be allocated or may be allocated to the location number 200. Okay, so something may happens, anything uh, can maybe there in this particular non-contiguous allocation. Okay, so matlab, memory allocation will be at any place. Okay, not one after another. Okay, so after digging this particular, that is continuous allocation, we come to that we have a fixed partitioning scheme and we have variable partitioning scheme. Okay, in fixed partitioning scheme, which is also called as a static partitioning scheme, or we can say fixed number of tasks. Okay, multi-programming with fixed number of tasks. Okay, and multi-programming with variable number of tasks, we also call it as a dynamic partitioning scheme or variable partitioning scheme. Okay, so थोड़ा सा और हम लोग डीप में जाते हैं. In the fixed partitioning scheme, we have two alternatives. We can have the equal size partitioning, we can have unequal size partitioning. ठीक है, थोड़ा सा हम लोग ड्रॉ करते हैं, हम लोग ने ड्रॉ भी किया था यहाँ पर. So we have equal size partitioning scheme and we have unequal size partitioning scheme. In equal size partitioning scheme, we partition the memory
the main memory into equal number of equal amount of the equal size of partitions. Okay, so you can see all the partitions are of 8 KB. This is partition 1, 2, 3, 4. So all 4 partition are of the same size. That is equal size partitioning scheme. And in that we came to know about the internal fragmentation problems आए आप लोग को आपने देखा. So in both the alternatives we found that there is a problem of internal fragmentation. But still चलो ठीक है, समझने वाली बात है. So equal size partitioning में we have seen that equal amount of size was given to all the partition. In unequal size partitioning scheme, we have divided the user space into unequal size partition: 2 KB, 4 KB, 6 KB, and 8 KB. You see, all 4 partitions are of a different size. Okay, so that is there is some logic that if there is any process who need only 2 KB, so we have lower partition. The इसको बोलेंगे small partition we have. Okay, so that the small process which is having very less requirement can be accommodated in the small partition only. If there is any process which has a bigger requirement, can be put in the bigger partition. Okay, so as per the requirement we can do so, but still we have internal fragmentation as you can see. फिर भी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हम लोग को मिला. ठीक है, चलो यहाँ बात आई गई, खत्म हो गई इक्वल अनइक्वल, लेकिन एक दिल में बात रहेगी कि देयर इज अ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. ओके, उसके बाद में फिर हमारे भाई साहब मल्टी प्रोग्रामिंग विद वेरिएबल नंबर ऑफ टास्क. ठीक है, which was also termed as the dynamic partitioning or variable partitioning. ठीक है, so in dynamic partitioning based on the requirement, based on the requesting process, the partition was created. Okay, so first process 1 comes with the requirement of 8 KB, so we create a partition of 8 KB for process P1 to 8 KB. Okay, अब वो भले ही आगे चल के हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन स्टार्टिंग में हम लोगों ने उनके हिसाब से बनाया. सो वी आर ट्राइंग टू कंसाइज द प्रॉब्लम एज मच एज पॉसिबल. ठीक है, तो हम लोग प्रॉब्लम्स को अपने क्या कर रहे हैं, कॉम्पैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू सॉल्व द इश्यूज. ओके, सो अब यहाँ इश्यूज ये इश्यूज करने की ये इशू को सॉल्व करने की वजह से हमारा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो रहा है, लेकिन एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है. ठीक है, यू माइट बी नोइंग, एंड मैंने आप लोगों को बताया भी कि दिस इज योर यूजर स्पेस. ओके, in this user space I have created the partition of 320k, 224k, 288k. you know, it was one scene जो हम लोगों ने मैंने आपको बताया था. This is the user space, and for process 1 has a requirement of 320k, so I made a partition of ये मैंने एक partition 1 बनाया. ठीक है, और उसमें P1 को मैंने allocate किया. partition 2 बनाया, उसमें मैंने P2 को allocate. partition 3 बनाया और P3 को. इतना सब हो गया. होने के बाद में 64 की अभी बात की. ठीक है, तो अब हो सकता है आफ्टर सम टाइम एग्जीक्यूशन ऑफ P1 एंड P3 कंप्लीट्स. P1 और P3 का एग्जीक्यूशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया. व्हेन दे कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन, देन देयर ये जो स्पेस यहाँ पर है वो ऐसा कुछ बच जाएगा स्पेस. ठीक है, एंड दीज जो खाली स्पेस है आपका, ये जो स्पेस बच गया है, ये स्पेस को हम लोग बोलते हैं होल्स. क्या बोलते हैं, सारा जो आगे का आपका मेमोरी प्लेसमेंट स्ट्रेटजीज का जो टॉपिक है, इट इज फुली डिपेंड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज होल्स. होल्स अगर आपको समझा है होल्स क्या है, then only you will be able to understand the concept of different memory placement strategies. Okay, okay, after some time we got another requirement, that is P4 and P5. Okay, so P4 was having a requirement of 280k and P5 was having, so P5 तो चलो बाद में आया. So P4 comes with the requirement of 280k and we were having 320k space remaining. अब ये कौन डिसाइड करेगा, कैसे डिसाइड करेगा कि इस इनकमिंग प्रोसेस दैट इज P4 को कहाँ एडजस्ट करना है, यहाँ पे एडजस्ट करना है कि यहाँ पे एडजस्ट करना है कि यहाँ पे एडजस्ट करना है. These are the different holes. I can say this is hole 1, this is hole 2 and this is hole 3. right, समझ में आ रहा है आप लोग को. These are the 3 different holes which are available, and we have still incoming process. Okay, which is the first incoming process, that is P4. Okay, P4 has a requirement of 280k. Okay, so where we are going to place this particular process among 3 holes. Okay, hole 1, hole 2, hole 3 में से इस particular process P4 को मैं कहाँ पे डालूं, hole 1 में, hole 2 में, hole 3. ये आपके सामने क्वेश्चन. इसको सॉल्व करने के लिए, इसको रिजॉल्व करने के लिए
we have the next topic, that is memory placement strategies. ओके, समझ में आ रहा है आप लोग को? क्यों हमारे पास में मतलब ये जो टॉपिक है वो क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस टॉपिक, मेमोरी प्लेसमेंट स्ट्रेटजीज। देखो मैं आपको पूरा घुमा फिरा के आपको ये लाया हूँ इसके लिए, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस टॉपिक। समझ में आ रहा है आप लोग को? चलो मैं भी आगे और कुछ बताता हूँ, तब मुझे फिर आप लोग बताना, बिकॉज अभी हो सकता है शायद अभी भी क्लियर ना हो, लेकिन आगे के डायग्राम से आप लोग क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो वी गॉट अनदर प्रोसेस P4 विद अ रिक्वायरमेंट ऑफ 280 के। ठीक है, सो मैंने तो रैंडमली यहाँ पर इसको प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद में अभी मेरे पास में होल बच रहा है यहाँ पर, तो यहाँ मेरे पास एक होल बचा। Another process that is P5 with the requirement of 200K. So we thought that this is the 40K space. We cannot accommodate this P5 at this particular location. We got another one that is 280K, 288K. So we have got this hole. We can place our process 5 into this particular hole. ठीक है, तो चलो हम लोगों ने इसको यहाँ पे डाल दिया। तो 288K माइनस 200K का हमारा था। ठीक है, जो 200K, तो इसमें से गया तो कितना बचा है 88K। तो 88K का जो होल हमारे पास में पड़ चुके, सो होल नंबर 1, होल नंबर 2 एंड दिस इज होल नंबर 3, वी आर स्टिल हैविंग। अब जो अपकमिंग प्रोसेस है उनको कहाँ प्लेस करना, अगेन वी हैव अ क्वेश्चन। ठीक है, सो एवरी टाइम, अच्छा हो सकता है मीनवाइल योर प्रोसेस 2 हैज कंप्लीटेड इट्स एग्जीक्यूशन। तो प्रोसेस 2 अगर कंप्लीट करता है तो उसका 224 प्लस ये हो गया आपका 40K, दोनों को मिला दो तो 264 के बन गया। तो अगर इफ यू हैव रिक्वायरमेंट देन वी कैन अकोमोडेट, मतलब ऐसा आपका चलता रहेगा। लेकिन क्वेश्चन हमारे पास में ये है, जस्ट stop at one point, at one instance, and just think that if we are having number of holes available like hole 1, hole 2 and hole 3, if we are having these 3 holes available with us, then if we have an incoming process, then these incoming process will be accommodate in which hole, कौन बताएगा हमें कैसे करना है, कहाँ पे डालना है, वो बताने के लिए हमारे पास में 3 डिफरेंट मेमोरी प्लेसमेंट स्ट्रेटजीज। क्या है हमारे पास में? 3 डिफरेंट मेमोरी प्लेसमेंट स्ट्रेटजीज। आगे बढ़ते हैं, इसके लिए हमारे पास में ये टॉपिक है। ठीक है, तो मैं आप लोग को डायग्राम भी बताता हूँ मेरा वाला। सो OS must determine where to place the incoming process. Okay, so I'm writing over here because आगे चल के रिकॉर्ड में रहेगा। OS must determine where to place incoming process, where to place incoming process. Okay, चलो एक सिचुएशन जो हम लोगों ने यहाँ पर लिए थे वो जो सिचुएशन है वो सिचुएशन में यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, सो वी हैव गॉट दिस वन, ताकि एक ही स्लाइड पे रहे। दिस इज माय OS। ओके, दिस इज मेरा 320, क्या था वो 320K का होल था, 320K। उसके बाद में आपका 224, 220, सॉरी क्या है 224K, 224K। आफ्टर दैट हमारे पास में 288K का है, 288K का है। ओके, और उसके बाद में 64K। ठीक है, उसमें से जो हमारा ये वाला है जो अभी तक चल रहा है। ठीक है, प्रोसेस 2 इज स्टिल रनिंग। ओके, एंड वी हैव होल नंबर 1, वी हैव होल नंबर 2 एंड वी हैव होल नंबर 3। ठीक है, सो OS must determine where to place the incoming process. Okay, if we are having say incoming process, for example हमारे पास में P4 है, P5, these two processes are coming with the requirement of 200K maybe, and P5 is coming with the requirement of 280K। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट के साथ में आ रहा है हमारे पास। तो OS must determine where to place the incoming processes. These are the incoming process. इनको इन होल में से कहाँ प्लेस करना है। होल 1 for example if we consider the P4, then P4 will be allocated to the hole 1 or hole number 2 or hole number 3. So we have a big question, and this particular question will be resolved by this particular issue will be resolved by memory placement strategies. Okay,
So this particular issue will be resolved by memory placement strategy, and for that we are having three different memory placement strategy. Now एकदम अच्छे से इसको समझ के लो, ठीक है। एग्जाम में 10 मार्क का क्वेश्चन है, मैं लिखना यहाँ पर भूल गया हूँ। 10 मार्क के लिए क्वेश्चन है मुंबई यूनिवर्सिटी का। ये होने के बाद में मैं आप लोग को बताऊंगा भी। क्वेश्चन पेपर हम लोग चेक करेंगे कितनी बार पूछा है, लेकिन एग्जाम में पूछता जरूर है। एंड देयर इज वन प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, okay, and this is one of the important topic, memory placement strategy. So we have three different memory placement strategies, ठीक है। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है आपका फर्स्ट फिट, इसका नाम है फर्स्ट फिट, ओके। ये कैसे काम करता है, क्या करता है, आगे बढ़। देयर इज द सेकंड वन व्हिच इज द बेस्ट फिट, नाम से ही बेस्ट है तो भी बेस्ट दोस्तों। वी हैव थर्ड स्ट्रेटजी, वी हैव थर्ड प्लेसमेंट स्ट्रेटजी व्हिच इज वर्स्ट फिट, ओके। नाम भी वर्स्ट है तो जाहिर बात है काम भी वैसे, ठीक है। सो रिमेंबर वी हैव थ्री मेमोरी प्लेसमेंट स्ट्रेटजीज, ओके। फर्स्ट इज फर्स्ट फिट, सेकंड इज बेस्ट फिट एंड द थर्ड इज फिट। क्यों आई मेमोरी प्लेसमेंट स्ट्रेटजी? बिकॉज हमको क्या करना है, was must determine where to place the incoming processes in the given holes, okay, in the given holes, okay, given holes, okay। तो ये गिवन होल्स में से यहाँ पर आपके प्रोसेसेस जाकर एकोमोडेट होंगे, सो दैट इज टू बी डिटरमाइंड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम एंड it will be defined by and it will be solved by the memory placement strategy, okay। और क्या बोले थे, when we have number of holes large enough to accommodate newly created process, okay। So if we are having this new upcoming processes, that is P4 and P5, these are the incoming or upcoming processes, or we also call it as a newly created process, okay, newly created। देखो अलग अलग जगह अलग अलग नाम से अगर कभी डेफिनेशन आएंगे तो कंफ्यूज होने की जरूरत है। So these are the upcoming process, these are the incoming processes, these are the newly created process, okay। And when they are coming for execution, obviously you have to allocate the memory, okay। और आपको पता है कि ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह है, ये तो किसी के पास से भी नहीं हिलने वाला, ठीक है। वी हैव होल वन विच इज ऑफ 320K, तो एक जगह हमारे पास बाकी है। P2 इज स्टिल रनिंग एग्जीक्यूशन में, उसको हम लोग छेड़ नहीं सकते। और होल 2 है हमारे पास में, तो यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं। ये तीन जगह हमारे पास में है, तीन जगह में से हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो अब कहाँ रखना है ये आपको आपके तीन स्ट्रेटेजीज बताएंगे। अलग अलग स्ट्रेटेजी अलग अलग तरीके से काम करती है। रिमेंबर जब हम लोग इसके बाद में भी सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि कौन सी, मतलब इन टर्म्स ऑफ थ्योरी हाउ दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी वर्क्स, ओके। समझ में आ रहा है आप लोग को? पहले यहाँ तक बताओ मुझे, समझ में आया यहाँ तक? यस सर। थैंक यू। Others can put a message. It won't take much time. चलो आगे बढ़ते हैं। Okay, we'll write about these three strategies. Okay, कैसे कैसे काम करती है। So we'll write about the first one, first fit, then best fit, and the worst fit, just for our reference. But otherwise, we are going to see with the help of example. Example से आप लोग एकदम clearly समझेंगे, ठीक है? I'm sure about it. So चलो सबसे पहले आपका तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी विच इज द फर्स्ट फिट स्ट्रेटेजी, व्हाट इट सेज, एलोकेट द फर्स्ट होल दैट इज बिग इनफ। जो भी अपकमिंग प्रोसेस है वो अगर कभी कहीं पे अकोमोडेट होना चाहता है, फॉर एग्जांपल जस्ट अंडरस्टैंड दिस सिनेरियो, वी हैव दीस तीन होल्स, ओके, होल 1, होल 2 एंड होल 3, एंड वी हैव अपकमिंग प्रोसेस P4। तो P4 को कहाँ पे प्लेस करना ये आपको कैसे पता चलेगा? एलोकेट according to the first fit, according to the first fit strategy, allocate the first hole that is big enough, okay। तो आप ये P4 को जो कि 200 का रिक्वायरमेंट लाया इसने, it has a requirement of 200K, so you are going to place it at the hole or at the location or at the place जो कि बिग इनफ हो, ठीक है। जो सबसे पहला होल मिलेगा, सर्चिंग करते जाएंगे आप, ऊपर से नीचे सर्च करते आएंगे, तो सर्च करने में जो सबसे पहला होल मिलेगा जो कि बिग इनफ है, जिसके अंदर आपका वो प्रोसेस एकोमोडेट हो सकता है। वरना आप बोलोगे कि पहला अगर फॉर एग्जांपल जो है वो मे बी 100 KB का है, पहला जो होल है 100 KB का, तो जो 200 KB वाला, जो 200K वाला P4 है वो 100K में कैसे अकोमोडेट हो पाएगा? तो इसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है
that is big enough. Okay, मतलब उसके काबिल भी होना चाहिए. ठीक है. So अगर यहाँ पे देखेंगे so 320 हो सकता है, चलो फिर उठा के डाल दो. तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट फिट, मैं आप लोगों को डायग्राम बताऊंगा, लेकिन पहले यहाँ पर खाली इतना ध्यान में रखो, ये आपको याद रखना है. ठीक है. In any condition you need to remember this, the statement or the line which I have underlined with the green sketch pen. Okay. So first it says allocate the first hole. Allocate the first hole. Allocate the first hole that is big enough. That is big enough. और क्या बोल रहे भाई साहब, सर्चिंग कैन स्टार्ट ईदर एट द बिगिनिंग. आप तो सर्चिंग वैसे तो यहाँ से 0 से स्टार्ट करने वाले हो, यहाँ से आपकी सर्चिंग स्टार्ट होने वाली है, या फिर अगर कभी आगे चल के, मतलब अगर आपने ऑलरेडी सर्च किया है पहले, तो उसके आगे से सर्चिंग स्टार्ट होगी. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट फिट वी हैव टू एलोकेट द फर्स्ट होल दैट इज बिग इनफ. ठीक है. मतलब वी हैव टू एलोकेट द प्रोसेस in the first hole only which is big enough, okay, which is compatible for the process. Okay. अभी ये खाली स्टेटमेंट आप लोग को दिखेगा, लेकिन आगे चल के जब हम लोग एग्जांपल से सॉल्व करेंगे देन आप लोग को समझेंगे. व्हाट योर बेस्ट फिट सेज, नाम भी बेस्ट है तो बेस्ट होना भी चाहिए. वी हैव टू एलोकेट द प्रोसेस द स्मॉलेस्ट होल दैट इज बिग इनफ. ठीक है. तो यहाँ पर उसका उल्टा है, उल्टा नहीं मतलब थोड़ा उसका एक अलग स्ट्रेटेजी है. एलोकेट the smallest hole. ये आपको इसका रीजन बाद में समझेंगे कि ये बेस्ट क्यों है. ठीक है. allocate the smallest hole that is big enough. That is big enough. Okay. And we have third one, that is worst fit. Okay. According to the worst fit, it says allocate the largest hole. According to the worst fit, we have to allocate the largest hole or the biggest hole. Okay. मैं इसको यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई करके लिखता हूँ. allocate the process in the largest hole. Largest you can say, or the bigger hole या biggest hole. ओके. ये 3 स्टेटमेंट आपको हर कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में आपको ये 3 स्टेटमेंट याद रखने. कैसे काम करता है. फर्स्ट फिट से इसके पहला जो भी मिला, फर्स्ट होल जो भी मिला उसके अंदर एलोकेट कर दो. ठीक है. लेकिन उसके काबिल होना चाहिए. ओके. ऐसा नहीं कि हमारे पास प्रोसेस है 200K का और जो अवेलेबल स्पेस है 100K. हाउ वी कैन अकोमोडेट 200K प्रोसेस इनटू द 100K. ऐसा तो नहीं कि कंपेयर करके रख सकते. तो इसके लिए पूरा दैट इज बिग इनफ. ओके. is saying bad deal, not a big deal, चलने दो. And what does your best fit says? Your best fit says कि allocate the smallest hole, allocate the process into the smallest hole that is big enough. Okay. तो थोड़ा सा है आगे पीछे, लेकिन आप लोग डायग्राम समझेंगे. Worst fit says allocate the process into the largest or the biggest hole. एक सेकेंड, इसका पावर ऑफ हो गया है, ये चल रही है. ये चार्ज होते रहेंगे. एक अभी चल रही है, चलने दो. आवाज क्लियर है ना अभी भी? एक ही यूज कर रहा हूँ मैं भी, एयरपॉड. थोड़ा अटक अटक के आ रही है सर. अटक अटक के आ रही है. मैं नहीं चाहता हूँ आवाज एकदम अटक के आए. आई थिंक नेटवर्क का कोई इशू हुआ रहेगा. अभी बताओ क्या ऐसी आवाज कैसी आ रही है? अब सही है सर. मैं कुछ यूज ही नहीं करता हूँ अभी, सिंपल मैं ऐसे ही मोबाइल का माइक्रोफोन यूज करेंगे हम लोग. थोड़ा सा मैं नजदीक आ जाता हूँ. चलो अब चलते हैं हमारे एग्जाम्पल पे. ठीक है. एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर ध्यान दो, अगर अब तक ध्यान नहीं दिया है तो, लेकिन अब ध्यान दो. ठीक है. So we have got these 3 strategies. These are the memory placement strategies. Okay, first fit, best fit, and worst fit. Now let us take one example. This is the example which is in front of you. That is the situation right now.
So we have allocated the memory in the user space, okay, to the upcoming process. होने के बाद में हमारे पास में कुछ होल बच गए, होने के बाद में एलोकेशन हुआ, प्रोसेस ने कंप्लीट किया एग्जीक्यूशन, एंड आफ्टर कंप्लीशन कुछ होल बच गए, एंड आई हैव मार्क दोस होल, ठीक है. दिस इज द होल 1, होल 2, होल 3, दिस इज होल 4 एंड होल 5, ओके. एंड द रिमेनिंग स्पेस जो आपको दिख रहा है यहाँ पर ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है. तो आई थिंक प्रोसेस 1 चल रहा है, प्रोसेस 2 एग्जीक्यूट हो रहा है, प्रोसेस 3 यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है, प्रोसेस 4 यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है, देन प्रोसेस 5 एग्जीक्यूटिंग हो गई है, ओके. सो ये सारे के सारे बिजी है, बट दीज आर फ्री, ओके. ये वाला फ्री है, ये वाला फ्री है, ये वाला फ्री, ये फ्री और ये फ्री, ओके. नाउ अज्यूम दैट we have incoming process that is process number 6, P6 is coming with the requirement of 10 kb. P6 is coming with the requirement of 10 kb. मैं यहाँ पर लिखा हूँ, समझ में आ रहा होगा, hope so. So we have an incoming process that is P6, okay. So incoming process आ गया, and we have 5 holes over here, okay. Hole number 1, hole number 2, hole number 3, 4 and 5, each with the memory available with them 15, 18 KB, 11 KB respectively, okay. So we have these holes and we have the incoming process. अब सामने हमारे क्वेश्चन ये है कि इस पर्टिकुलर पीस इसको कहाँ पर मैं फिट करूँ, इसको मैं यहाँ पर फिट करूँ, ये यहाँ पर फिट करूँ, कि यहाँ पर करूँ, कि यहाँ पर करूँ, कि यहाँ पर करूँ. I have a question to you people. According to the first page, it says that allocate the memory, allocate the space, allocate the memory to the process to the first hole that is big enough. मतलब सर्च करना स्टार्ट करो. चलो यहाँ से हम लोग सर्च करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है. तो P6 के लिए जगह ढूंढना है हम लोग को, P6 के लिए जगह ढूंढना है. सो वी हैव स्टार्टेड सर्चिंग फ्रॉम द टॉप. तो सबसे पहला होल मिला 5 KB का. 5 KB में हम लोग इसको फिट कर सकते हैं. अरे कैन वी डू दैट? No, sir. So we cannot fit the P6 which is having 10 KB of requirement, which is requesting of 10 KB. We cannot fit into the hole number 1. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. यहाँ तो चलो काम चालू है तो इनको छेड़ नहीं सकते. यहाँ से चलो हम लोग यहाँ पर आ गए. इट इज हैविंग 15K. कर सकते हैं फिट. फर्स्ट फिट क्या बोलता है, जो पहला मिला उसमें कर दो, जो कि आपका बिग इनफ है, ओके. तो चलो 15 KB हम लोग कर देंगे. तो 15 KB हम लोगों ने कर दिए, ठीक है. सो मैंने एक काम करता हूँ यहाँ पर. तो इसको मैंने किया रब. क्यों नहीं हो रहा है भाई? अच्छा ये होगा नहीं, हाँ, क्योंकि मैंने ये इमेज बनाया था इसको एक्चुअली. ओके, सो मैंने 10 KB को यानी कि पीसेस को होल 2 में फिक्स करना है, उसमें फिट करना है. तो इसमें से आपका 15 KB में फॉर एग्जांपल 5 KB के 3 पार्टीशन कर लो, 1 और 2 फॉर एग्जांपल, ठीक है. तो इतना आपका हो गया. P6 इसमें एलोकेट हो गया. P6 को मैंने एलोकेट कर दिया, उसको दे दिया मैंने 10K, ठीक है. इसको मैंने हटा दिया, ठीक है. तो P6 को मैंने दे दिया 10K. अब रिमेनिंग कितना है? अरे बोलो कितना बाकी है? 5. तो 5K इज रिमेनिंग ओवर हियर. अभी भी हमारे पास में प्रॉब्लम है. तो ये भी हमारे पास में एक होल बच गया, ठीक है, होल बन गया. आई कैन से दिस इज द होल नंबर 6, ठीक है, आगाही का होल समझ लो. तो ये आपका अपकमिंग प्रोसेस था. तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट फिट प्लेसमेंट स्ट्रेटजी, इट सेज दैट you have to allocate the upcoming or incoming or newly created process into the first hole which is big enough, okay. तो आपने यहाँ से सर्चिंग स्टार्ट किया. सर्चिंग स्टार्ट करने के बाद में आपको इसके अंदर इसको प्लेस नहीं कर सकते. यहाँ पर ऑलरेडी काम चालू है तो यहाँ पे भी नहीं कर सकते, यहाँ पर कर सकते हैं. तो किया हम लोगों ने, तो इतनी जगह हो गई और ये जगह वापस से बच गई, ठीक है. तो फर्स्ट फिट का ये हमारे पास में. चलो एक और एग्जांपल देखते हैं. We have another process that is process number 7 having requirement of say 12 KB. It has a requirement of 12 KB, okay. तो वापस से हम लोगों ने सर्चिंग स्टार्ट किए. सर्चिंग में यहाँ से करता हूँ स्टार्ट.
5K का होल है जो कि अभी भी है अवेलेबल, बट वी कैन नॉट फिट आर 12KB रिक्वायरमेंट फॉर इन द होल नंबर 1। यहाँ पर फिट नहीं हो सकता, यहाँ पर भी काम चालू है तो नहीं हो सकता। अब 15KB में कितनी जगह बाकी है भी यहाँ पर? 5K। यहाँ पर ओके, तो 5KB में भी हम लोग फिट नहीं कर सकते। यहाँ तो ऑलरेडी काम चालू है, यहाँ पे भी काम चालू है। 18K पहली जगह मिली, कर सकते, बिल्कुल कर सकते, यस। कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जगह हम लोग ने दे दिया। सॉरी, ये लाइन टेढ़ी जा रही है, थोड़ा टेढ़े, इसको हम लोग हटा लेते हैं। हाँ चलो, तो ये हम लोग ने दे दिया 12K। सो आफ्टर एलोकेटिंग 12K we have got this space. How much space is remaining? That is 6K. Okay, so we have got another hole number 7 हमारे पास में वापस से क्रिएट हो गया। तो प्रोसेस नंबर 7 को कितनी जगह मिली? 12K, इसको हटा दो। ठीक है, तो प्रोसेस नंबर 7 को we have allocated 12K space and again 6K of space is remaining. Okay, यहाँ से इतना क्लियर है? मतलब आपका अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट फिट स्ट्रेटजी, according to the first fit strategy, it will allocate the process into the memory which will come first. Okay, जो कि big enough है। okay, तो यहाँ पर हम लोग ने कर लिया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले पे, दैट इज द बेस्ट फिट। इतना सबको समझा है? आई होप सबको समझा। यस सर। टू द नेक्स्ट स्ट्रेटजी दैट इज बेस्ट फिट। ओके, अब बेस्ट फिट की बात करते हैं, तो चलो वही एग्जांपल ले लेते हैं। वी हैव अपकमिंग, वी हैव इनकमिंग, वी हैव न्यूली क्रिएटेड प्रोसेस P6 हैविंग रिक्वायरमेंट ऑफ 10KB। ओके, सो 10KB का रिक्वायरमेंट है। व्हाट डज योर बेस्ट फिट सेज? योर बेस्ट फिट सेज दैट you have to allocate the smallest hole. Okay, you have to allocate the process in the smallest hole that is big enough. Okay, तो आपको क्या करना है? पूरा सर्च करना है, और सर्च करने के बाद में जो होल सबसे छोटा है, जिसके अंदर वो फिट हो सकता है, उसमें आपको फिट करना है। एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, सो वी हैव स्टार्टेड सर्चिंग, तो सर्चिंग यहाँ से स्टार्ट किए P6 के लिए। So for P6 we found that okay, this is not the enough space. Okay, here already the working is going on, P1, P2, P3 मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर so that you can understand, P5. Okay, so we have these processes already working in their places, so we cannot allocate the process in this particular location. अब यहाँ पर देखेंगे तो 15K अवेलेबल है। ठीक है, तो 15K तो अवेलेबल है, बट हम लोग यहाँ पर एलोकेट नहीं करेंगे। यही जो फीचर है आपके बेस्ट फिट का, दिस इज द वेरी गुड फीचर ऑफ योर बेस्ट फिट स्ट्रेटजी, दैट इट डज नॉट एलोकेट द मेमोरी एज इट इज। ठीक है, इट फर्स्ट सर्च इन द होल मेमोरी, मेन मेमोरी में सब जगह देखेगा, और जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वही आपको देगा। ठीक है, सो यहाँ पर एलोकेट कर सकता था, जो कि हमारा फर्स्ट फिट कर रहा है। ठीक है, बट हम लोग यहाँ नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग आगे जाएंगे, यहाँ कर नहीं सकते, यहाँ कर नहीं सकते, इसको हम लोगों ने ऑप्शन में रखे। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने अभी हम लोग सोच रहे हैं। ठीक है, 18K is the another requirement, so we have got two option. Option number 1 is 15K, option number 2 is 18K. ठीक है, उसके बाद में चलो इसको भी हम लोगों ने कंसिडर कर लिया। P4 में कर नहीं सकते, 11K we have requirement, तो ये भी हम लोगों ने ले लिया। तो we have third option 11K। सब ऑप्शन सामने रखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे। Sub option will keep in front of us, and then only we will decide that in which location, in which place, in which hole your upcoming or incoming process is to be allocated. Okay, getting we have P5, इसमें कर नहीं सकते। we have next one that is 13KB. okay, तो हमने फोर्थ ऑप्शन भी रख ली। आगे जगह है नहीं, जगह है, कोई ऑप्शन बचा है नहीं ऑप्शन। अब 10KB को प्लेस करने के लिए कौन सा ऑप्शन में से बेस्ट रहेगा मुझे बताइए। H4। That is hole 4, which is having the memory, which is having the memory space of 11KB. Okay, so ये वाला ऑप्शन हमारे लिए क्या रहेगा? बेस्ट फिट रहेगा। ठीक है, so we will allocate P6, we will allocate P6 into the hole number 4. Okay, which is of 11KB, जहां पर हमारा नुकसान कम से कम हो रहा है। ठीक है, हमारा नुकसान इसमें कम से कम हो रहा है। ठीक है, तो चलो एलोकेट करते हैं। होल 4 के अंदर हम लोग ने एलोकेट किए, और हमारे पास में बहुत थोड़ा सा स्पेस बच गया। ठीक है, ओके, सो मैंने P6 में यहाँ पर एलोकेट कर दिया। P6 इज इक्वल टू
10K, और ये हमारा जो स्पेस बच गया है, ये स्पेस जो हमारा बच गया है दैट इज द अनदर होल, ओके, होल नंबर 6 बच गया, ठीक है, जो कि सिर्फ 1 KB का है, बहुत ही कम लॉस है हमारा, ठीक है। सो दिस इज योर बेस्ट फिट स्ट्रेटेजी, गॉट द थिंग, समझ में आया? यस सर। ओके, एक ही जन आंसर कर रही है, बाकी लोग कम से कम मैसेज तो करो कि समझ में आ रहा है आप लोग को कि नहीं, ओके, ठीक है। सो दिस इज द बेस्ट फिट स्ट्रेटेजी, ओके, विल टेक वन मोर एग्जांपल, आगे चल के मैं एक एक को अलग अलग एग्जांपल भी लूंगा यहाँ पर, लेकिन हम लोग हर स्ट्रेटेजी को पहले समझ लें, ठीक है। कमिंग टू द वर्स्ट फिट, ओके, so this is the last strategy. Here P1 is working, P2 is working, P3 is working, P4 is working, P5 is working, okay, and we have upcoming requirement P6 which is of 10 KB, okay. So we have incoming process, we have newly created process, we have upcoming process which is P6 having which is requesting of 10 KB of memory, okay. And what does your worst fit says? According to the worst fit, it says that allocate the process in the largest or the biggest hole. मतलब पूरे इसमें सर्च करो और जो सबसे बड़ा होल है उसमें जाके आप अपने प्रोसेस को एलोकेट करो, ये आपका वर्स्ट फिट बोलता है। हालांकि ये अच्छा है क्या? नहीं अच्छा है ना, बिल्कुल अच्छा नहीं है, और ये एलोकेशन भी सही से नहीं करता, तो इसके लिए, लेकिन एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस एंड एज अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी वी हैव टू लर्न इट, ओके। सो चलो करते हैं हम लोग वर्स्ट फिट का start, okay. So we will start searching from the top, we will start searching from the top and we will find which is the hole, कौन सा यहाँ पर होल ऐसा है which is having the largest and the biggest hole, okay, which is having biggest size, okay. तो सबसे पहले आप लोगों ने सर्च किया this is hole 1 which is 5 KB, ठीक है। उसके बाद में सर्च किया, यहाँ पे नहीं कर सकते, 15K, फिर 15K मिला हम लोग को, तो इसको हम लोगों ने कंसिडर किए, इसको कंसिडर किए, यहाँ कर नहीं सकते, यहाँ कर नहीं सकते, इसको कंसिडर किए 18K, इसको हम लोग कर नहीं सकते, यहाँ पर 11K, ओके, एंड उसके बाद में हमारे पास 13K, ठीक है, तो ये रहा 13K, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग को क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द वर्स्ट फिट वी हैव टू फाइंड द लार्जेस्ट और द बिगेस्ट होल, ओके। सो कहाँ है भाई आपका लार्जेस्ट और बिगेस्ट होल? H3 बिगेस्ट होल, ओके, H3 मतलब आपका 18K जिसका स्पेस है विच इज हैविंग द बिगेस्ट होल। सो वी विल एलोकेट, हालांकि कोई सेंस बन रहा है इसका? नहीं बन रहा है, लेकिन अब पार्ट ऑफ द सिलेबस है तो पढ़ना है तो पढ़ लो। दिस इज द वर्स्ट फिट स्ट्रेटेजी विच इज, उसका नाम ही इसके लिए वर्स्ट रखा है। अब जब आप लोग यहाँ पर एलोकेट करेंगे 10K को 18K के अंदर, जब आप एलोकेट करेंगे 10K को, जब आप 18K में एलोकेट करेंगे तो क्या होगा, आपका यहाँ पर 8K बच जाएगा, यहाँ पर आपका 8K बच जाएगा। सो P6 मेरा एलोकेट हो गया 10K के साथ में, और यहाँ पर मेरा एक नया होल बन गया जो कि है मेरा 8K का, ठीक है, जो कि काफी बड़ा अमाउंट है और काफी बड़ा स्पेस है जो कि हमारा छूट रहा है, इसीलिए इस स्ट्रैटेजी को हम लोग वर्स्ट फिट स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं, ओके। So I hope you have understood these three different memory placement strategies. Okay, let me revise in a minute. Okay. So we have got this memory placement strategy. So first try to understand the existence of this particular topic, why this topic is came into existence, क्यों requirement है भाई इसका, इसके लिए कि when after allocating memory in the dynamic partitioning, in dynamic partitioning after allocating memories, you know, when processes completes and leave the space, then those spaces becomes holes, okay. And when there is a incoming process, when there is a upcoming process, when there is a newly created process, then उन प्रोसेस को कौन से होल में फिट करना है ये आपको बताने वाला कोई नहीं है, ठीक है। सो ओएस को, ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको ये डिटरमाइन करना है, ठीक है, और ये डिटरमाइन करके कौन देगा, ये डिटरमाइन करके आपके मेमोरी प्लेसमेंट स्ट्रेटजीज आपको बताएंगी कि कहां पर प्लेस करना है। वी हैव
three different memory placement strategies. One is the first fit, second is the best fit, and the third is worst fit strategy. According to the first fit, पहला जो भी मिला उसमें डाल दो. According to the best fit, सबका देखो, उसमें जो सबसे छोटा है उसमें डालो. Worst fit says सब जमा करो, उसमें जो सबसे बड़ा है उसमें डालो. अब तो क्लियर हो गया होगा. यहाँ पर जो पहला मिले उसमें, इसमें बेस्ट फिट में जो सबसे छोटा मिले, जो सबसे स्मॉल है उसमें डालो, और वर्स्ट फिट से जो सबसे बिगर है उसमें डालो. ठीक है, तो तीनों का समझ में आया. Then we took the example, and this example we came to know that how your first fit works, how your best fit works, and how your worst fit. Okay. यहाँ तक हम लोग करके रुकते हैं. कहाँ पर है. ठीक है, आज हम लोग इतना करके रुकते हैं. कल हम लोग सारे जो मेमोरी प्लेसमेंट स्ट्रेटजीज का एक एक एग्जांपल और लेंगे. सो सी मैंने यहाँ पर रखा भी हूँ, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट एन एग्जांपल. तो ये एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं बाद में. आई एम पुटिंग द लिंक इन द चैट बॉक्स, यू कैन कॉपी द लिंक विथ यू. तो ये वीडियो आप लोग बाद में देखना, आपको और चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, सो और उसके बाद में फिर हमारे पास में देखो, फर्स्ट फिट को मैंने अलग से एक्सप्लेन किया हूँ, बेस्ट फिट को अलग से एक्सप्लेन किया हूँ, एंड देन वर्स्ट फिट को अलग से एक्सप्लेन किया हूँ. ये तीनों को हम लोग कल ही कर लेंगे, तो कल ही हमारा तीनों हो जाएगा. ठीक है, एंड आफ्टर दैट विल बी कवरिंग द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कहाँ पर है, कॉम्पैक्शन. दिस अ वेरी स्मॉल टॉपिक, हम लोग भी कल ही कर लेंगे. तो तीनों के अलग अलग एग्जाम्पल प्लस कॉम्पैक्शन, अ सोल्यूशन फॉर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. जैसे वी गॉट अ प्रॉब्लम ऑफ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, तो वैसे हमारे पास में एक एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का भी इशू आता है, और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए वी हैव अ सॉल्यूशन, एंड द नेम ऑफ दैट सॉल्यूशन इज द कॉम्पैक्शन. तो कॉम्पैक्शन क्या होता है वो भी कल देखेंगे. उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पेजिंग और सेगमेंटेशन, ये दो टॉपिक बचते हैं. सो व्हेन वी विल कवर दीस टू टॉपिक, पेजिंग एंड सेगमेंटेशन, सो विल बी एक उसके लिए एक लेक्चर और लगेगा. ठीक है, तो एक लेक्चर इसके लिए, एक लेक्चर पेजिंग के लिए, मतलब पेजिंग और सेगमेंटेशन के लिए. ठीक है, सो आज ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे है ना. ठीक है, 2 दिन है हमारे पास में, और 2 दिन में हमारा ये हो जाएगा. ठीक है, सो इन दीस 2 days वी विल बी कवरिंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 4. ओके, तो हम लोग नेक्स्ट वीक में चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे. ओके, सो दिस इज द टाइमलाइन फॉर अस. एक और चीज बोलना था आपको. एक्चुअली हम लोग प्रैक्टिकल्स के अंदर भी, फर्स्ट लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग.